A very good morning, dear student. Dear student, today we are starting the new chapter, and the new chapter name is Social Responsibility of a Business and Business Ethics. Class 11, Business Studies, chapter number 6. My dear student, this is an introduction. Introduction is this. In the previous chapter, we have discussed. In the previous chapter, my dear student, the first chapter, we have discussed that business cannot survive for a long time by pursuing only economic objective. केवल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही अगर हम चाहें कि पैसा कमाना चाहें, उससे बिजनेस चलाना चाहें, तो केवल उससे नहीं चलेगा. Along with economic objective, it must have some social objective. Social objective भी लाना पड़ेगा, and social objective is very very important. But my dear student, in this chapter we will study that a business should perform social responsibility towards our employees, our customers, our suppliers, our investors, our community and government. But my dear students, definitely one question will arise in your mind, in your brain, that why should we perform the social responsibility? Why should we do the social responsibility? Suppose a customer has come on my shop and my customer is paying money, तो definitely if he is paying money, तो मैं भी तो उसे कुछ ना कुछ सामान दे रहा हूँगा. I am providing some goods or services, and after it he is paying money. Then why should I perform the social responsibility? Suppose in the employee case, my employee is working in my organization, and he is giving service. So definitely if he is giving service in my organization, he is doing job in my organization, then after it I will pay to him because of this service. Then why should I perform social responsibility? My dear student, this type of question will raise in your mind. But my dear student, this is very very important that we should perform the social responsibility अगर हमें लंबे समय तक अपने बिजनेस को चलाना है तो. बिकॉज इफ़ यू विल थिंक ओनली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक बेनिफिट, देन हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे. तो डेफिनेटली वी हैव टू परफॉर्म द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट व्हाट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है? Actually, my dear student, if a customer is coming on my shop and he demand some product, so definitely I know very well about it that if I will give the product, then he will pay money. But my dear student, social responsibility says that you should give your product at a reasonable price, at a good quality. आपके प्रोडक्ट की गुड क्वालिटी होनी चाहिए, रिजनेबल प्राइस होने चाहिए, और वो सारे उसमें फीचर्स होने चाहिए जो वो सेटिस्फाइड हो कि यस, कि आई एम सेटिस्फाइड दैट इफ़ आई एम पेइंग दिस मनी, देन उस पैसे के अकॉर्डिंग इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. एंड दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू. नो ब्लैक मार्केटिंग, नो अडल्ट्रेशन, नो रॉन्ग थिंग, नो रॉन्ग प्रैक्टिसेस शुड बी देयर. तो दिस इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे. और अगर आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे तो लंबे समय तक आप पैसा कमा पाएंगे. इट्स मीन्स योर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी फुलफिल, योर गुडविल विल बी इंक्रीज, योर ब्रांड विल बी मेक बिकॉज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने से डेफिनेटली आपकी गुडविल बनेगी और रेपुटेशन बनेगी, और आप अपनी ब्रांड भी बना पाएंगे, क्योंकि एक लंबे समय तक चलेंगे तो आप ब्रांडेड हो जाएंगे. तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बट इफ़ वी कम इन द कॉन्सेप्ट इज दिस दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द वॉलंटरी एफर्ट्स. माय डियर स्टूडेंट, वॉलंटरी एफर्ट्स मीन्स कोई आप पे वो नहीं है
कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको करनी नहीं करनी, वॉलंटरी है, आपकी मन करता तो आप करिए, आपका मन नहीं करता तो मत करिए। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, बिकॉज बिजनेस इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो बीचों में बैठा है बिल्कुल सोसाइटी के, एंड बिजनेस यूज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वो ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, सोसाइटी के फिजिकल रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक एम्प्लॉयज़ और फिजिकल रिसोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड रिक्शा वाला एंड अदर्स थिंग्स। जो भी सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज हैं वो सारे वो यूज़ कर रहा है। तो दिस अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर उन्हें डेफिनेटली सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये सोसाइटी ही अपने बीच में से इस बिज़नेस को ख़त्म कर सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी शुड परफॉर्म द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट, सपोज अडल्ट्रेशन मीन्स मिलावटखोरी। आपकी एक स्वीट शॉप है, उसमें आप मिलावट करते हैं, तो दिस इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस एंड दिस इज़ द definitely this is punishable also according to law, and this is unethical business, and this is, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो definitely you are not performing the social responsibility, and if you are not performing the social responsibility, then first of all your customer, because customer is the king of the market। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में हमने यही सीखा था कि हमें अपने कस्टमर बनाने हैं। We have to create customer for itself. This is a today's business definition. Business की आज की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द कस्टमर फॉर इटसेल्फ। अपने लिए खुद कस्टमर बनाइए। माय डियर स्टूडेंट, अपने लिए कैसे कस्टमर बनाएंगे? जब तक हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली वी हैव टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन वी विल क्रिएट द कस्टमर फॉर इटसेल्फ। और अगर हम अपने लिए कस्टमर बना पाएँ तो डेफिनेटली हम लॉन्ग टाइम तक पैसा को कमा पाएंगे। तो आवर फर्स्ट टारगेट शुड नॉट बी द अर्निंग मनी, फर्स्ट टारगेट इज़ अ सोशल वेलफेयर एंड सोशल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगर हम इस पॉइंट पे चलते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम तक पैसा कमा पाएंगे। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। माय डियर स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट दिस इंट्रोडक्शन इन दिस कॉन्सेप्ट एंड देयर इज सम डेफिनेशंस ऑल्सो। So now you read and you study this concept. Then in the next video and next class we will discuss the argument and the cases of the social responsibility. Thank you very much, student.